ਸਤ ਸੰਤੋ ਸਤ ਸੰਤੋ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਤ ਸੰਤੋ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਸਤ ਸੰਤੋ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਪੂ, ਸੰਤੋਖ ਆਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਫਰੀਦਾ ਇਕ ਨ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ, ਇਕ ਨ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ। ਫਰੀਦਾ ਇਕ ਨ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ, ਇਕ ਨ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ। ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ। ਇਕ ਨ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ, ਇਕ ਨ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨ ਨਾਹੀ ਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਝਾਪ ਸਨ, ਝੂਟਾ ਖਾਸੀ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਝਾਪ ਸਨ, ਝੂਟਾ ਖਾਸੀ ਤੋਂ। ਇਕ ਨ ਆਟਾ ਅਗਲਾ,
ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋ ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅੰਗ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਨ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਨ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਨ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ आगे गए सीधा कुसन आगे गए सीधा कुसन झूठा खासी को झूठा खासी को एक ना नाही लो एक ना नाही लो एक ना नाही लो एक ना नाही लो एक ना आटा अगला एक ना नाही लो फरीदा एक ना आटा अगला एक ना नाही लो एक ना नाही लो एक ना नाही लो। कबीर खूब खाना खूब खाना कबीर खूब खाना खिचड़ी जाम अमृत लो खूब खाना खिचड़ी
गला कटावे खूब खाना खिचड़ी खूब खाना खिचड़ी जाने अमृत लो जाने अमृत लो जाने अमृत लो जी रत लग गए कपूरे जी रत लग गए कपूरे जामा हुए पलीते जामा हुए पलीते जी रत लग गए कपूरे जी रत लग गए कपूरे जामा हुए पलीत जामा हुए पलीत जो रत पीवे मानसा जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल दिन क्यों निर्मल नानक नाम खुदाए का नानक नाम खुदाए का दिल हच्छे मुखले दिल हच्छे मुखले अवर दिवाजे दुनी के अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे झूठे अमल करे झूठे अमल करे जी रत लगे कपूरे जी रत लगे कपूरे जामा हुए पलीत जामा हुए पलीत जो रत पीवे मानसा जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल
ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ 1380 ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, 44 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 188 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1374 1374 ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸੂਝ ਵਧੇ ਔਰ ਸਮਝ ਸੂਝ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗੁਣਾ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਔਗੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਤਨਾ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਨੇ ਪੱਥਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਪ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਯੂਅਰ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ का मन मन्ने। मन मनने का मतलब की है, मैं कुछ ऐसा करा सतगुरु जी का मन खुश हो जाए, नहीं ऐसी नहीं गल चल रही। सा सेवा की सफल है जिस सतगुरु का मन, मन मतलब हुक्म मन्ने, जे सतगुरु का हुक्म मन्ने। जब सतगुरु का मन भाव हुक्म, जहाँ सतगुरु का मन मन्निया, तू मन्निया, सतगुरु जी ने नहीं मन्निया। सतगुरु जी ने जो किया वो तू जदों मन्निया, जहाँ सतगुरु का मन मन्निया तां पाप कसम्बल पन तेरे निक्के 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 ढेर सारे अवगुणा दे पत्थर भन्न दिते जाते हैं, चूर चूर कर दिते जाते हैं, तेरा बेड़ा डुबन तो बचा लिया जाता है। जिस बेड़े च ढेर सारे पत्थर हो और बेड़ा चलाने वाले को बेड़ा चलाना ना आंदा हो, वही वो बेनती करेगा ना, मैनू चलाना भी नहीं आता, तुसी काइंडली मेरे बेड़े दे कैप्टन बन जाओ। मैं अज दी वोकैबलरी यूज कर रहा जो आजकल आम नौजवानों को लैंग्वेज समझ आती। मेरे बेड़े दे, मेरे शिप दे कैप्टन बन जाओ ते मेरे दया करो किछ मेरे बाबू डुबदे पत्थर तारे। मैं रियलाइज कर रहा कि मेरे अवगुण बहुत हैं। दैट इज द बेस्ट डायग्नोस।
जे मैं अपना डायग्नोज इंज कर ही नहीं पा रहा कि मेरे च अवगुण है, तो ਉਹਦੀ निशानी होएगी मैं लोगों के अवगुण देखांगा। बेस्ट कि मैं अपने अवगुण देख सका। काइंडली ग्रांट मी दैट आई साइट, मनु ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੇਤਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਘੜਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪਸਨ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਟੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹਾਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਵਰਸਿਸ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਛੋੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ, पर जंगल ही जाके जिस पेड़ थल्ले बैठते हैं ना, फिर ख्याल आता है यहाँ पर मैं बैठता हूँ, तुम यहाँ बैठ के भक्ति नहीं कर सकते, ये आसन मेरा है। फिर भी पदार्थ उत्ते फंस गया दिमागी। कपड़े भी त्याग देते, ये लंगोटी मेरी है। इंज हो जाता है ना। पदार्थवाद की गल के बदले सानू जो ये रिनाउंसिंग और ये सारा कुछ करना किया जाता है, असी अपना रिलेट नहीं कर पाते। तो जिन्होंने विआह नहीं कराया, गृहस्थी छोड़ गए ने, काम काज नहीं करते ने, कमाइयां नहीं करते ने, गुरमत का बेसिक फंडामेंटल नहीं जीते ने, काल खाए कि छत्थों दे नानक राह पछाणे से। तू मेहनत करया कर, मेहनत दियाँ कमाइयां चो दूसरे नाल भी शेयरिंग करया कर, करते ही नहीं हो। तो उस सोचनी के कारण अर्थ ये किए जाते हैं। एक ना आटा अगला, फरीद जी कह रहे हैं एक ना कोल मीनस देर आर पीपल जिन्हों को ढेर सारा आटा है, एक ना ही लोन। तो देखो कुछ ऐसे भी गरीब है जिनके पास नमक भी नहीं है, लूण भी नहीं है। ये आमतौर पर और रिनाउंसिंग और पदार्थवाद की गल करके जोड़े सो कट ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मचारी जी होंगे ने, वो इंज दे संत जी बाबा जी अर्थ करते। देखो जी एक ना कोल ते ढेर सारा आटा है, एक ना कोल लूण भी नहीं है। अगे गए संजापसन, चोटा खासी कौन, जिदे कोल ढेर सारा आटा है वो अगे जाके रब जी के दर ते मार खाएगा। फिर तो सारा दे घर आटा है ही है, सारे ही मार खाओगे।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਪਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, मैं हुने गल गल ते ठुड्डे खांदा हाँ, मैं हुने वेख न चले अगे टोआ मैं टोए च डिगदा हाँ। कबीर मन जाने सब बात जानती अवुन करे काहे की कुछ लात हाथ दी कुएं पर है। मैं रोज खूच डिगदा हाँ, पल पल डिगदा हाँ। मैनू अगे मरण तो बाद नहीं पता, प्लीज मैनू हुने ते छुड़ा लो। वो इंसान अगे दे मीनिंग समझेगा। जिस पल तैनू सच दसिया जा रहा है वो सच नू सुनिया मनिया मन कीता भाव कर, पर जे तू सुनदा नहीं समझदा नहीं तो उस तो बाद जिहड़ा तेरा जीवन है बन जाता है हर पल। जितना असी सच नू इग्नोर करते हैं ना साडा हर पल जिहड़ा जीवन है ना, साडे एक्शनस ने ना जिहड़े, मेरा थॉट प्रोसैस है ना जिहड़ा, मेरी बॉडी लैंग्वेज है ना जिहड़ी, ये सारा मैनू दुखी करता है। इनू चोटा खाना कहते। मंदे अमल करेंद्या ये सजाए तीना, मंदे अमल मैं इत्थे करा सजा मरण तो बाद मिलेगी। दिस इज नॉट फेयर। फिर तो पुलिस भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि पुलिस भी कहेगी तुमको आगे जाके सजा तो मिलनी है, हम तुमको अभी यहाँ क्या सजा दें। पर पुलिस भी सजा देती है पकड़ के जे कोई मंदे अमल इत्थे करे। पुलिस नहीं कहती तुम आज कर लो 10 साल के बाद तुमको सजा देंगे, वो भी पकड़ दें। एक गल वखरी है कि मनुख उसनू मैनुपलेट कर जाता है। पर साध संगत जी पुलिस पकड़े या ना पकड़े, समाज पकड़े या ना पकड़े, मेरे मन दे मंदे ख्याल मैनू पल पल चोटा खुआंदे ने। ये मेरा अग्गै है, यह चोटा खाना है। कामा दै कागद पुन्ने कोई लिया, गन्ना निपीड़िया जाता है, कागज़ कुन्नी कोयले ये सब इस तरह सड़ते हैं और पीसे जाते हैं। एक ही है एंड ए मनुख तू जींदे जी पल पल निपीड़िया जा रहा है। अपने बारे सोच। जिस पति नू अपने बारे समझ आ जाएगी ना, वो पत्नी नू और बच्चियां नू सवारना नहीं चाहेगा, वो पहला अपने आप को सवारेगा। वो सारी दुनिया में जाके नहीं कहेगा मैं संवरना चाहता हूँ, मेरे को अपना रोग समझ में आ गया, पर पत्नी बच्चों को पहले मैं ठीक कर रहा हूँ, जब तक ये ठीक नहीं हो रहा तब तक मैं चोटा खाने को तैयार हूँ। इंज नहीं होता। पत्नी वे कहे मैं तो संवरण को तैयार हाँ, मैं तो निकसरे पंखी सिमर हर पंख करन तैयार हाँ, अपने पिंजरे तो मैं ऊपर उठ के सतगुर दी मत दा लड़ पकड़ना है। वो कहे जी बाकी सारा टब्बर नहीं सुधरता। अज असी किसी नू सवार नहीं सकते हैं। हर इंसान अपने बारे सोचता है, अपने बारे सोचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। चैरिटी बिगन्स एट होम, मेरे अंदरों शुरू होएगी, दूजे दी बिगन ना होए ता। और गुरु साहब दी कमाल दी देखो, गुरु साहब अपने ते टुका के कहते ने जबकि आप ऐसे नहीं हैं। असी ये सांझ कर रहे हैं कि भाई मैं अंदरों कुछ हो रहा बाहरों कुछ हो रहा, मेरी यह हिपोक्रेसी है और मैं इस हिपोक्रेसी तो छुटना चाहता हाँ, तब मैं मनागा ना कि मैं हिपोक्रेट हाँ। इफ आई एक्सेप्ट दिस तब गुरु नानक साहब का शब्द सामने आएगा, हो पापी पतित परम पाखंडी। गुरु नानक साहब ते पापी पखंडी बिल्कुल नहीं सी। एक इतनी उच्ची शख्सियत जो परम पाखंडी पापी नहीं सी, वो अपने ते कितनी हंबलनेस नाल टुका के कह रहे ने, हो पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकार। ते असी कह रहे हैं मैं पापी पतित परम पाखंडी है ही नहीं। कितना कंट्रास्ट, कितना असी उस तो डिफरेंट है। माधो हम ऐसे तू ऐसे, बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਲੋਨ, ਇੱਕੋ ਲੂਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਮਿਸ ਡੀਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਮਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਕਿਚਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੰਗਰ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੂਫ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੌਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਛੱਤੋਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਇਆ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਲੂਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਲਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਸੌਲਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। We have to be fair। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਟੁਕਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲ ਢੇਰ ਆਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੂਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਸੁਪੀਰੀਟੀ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ। ਪਰ ਆਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਥਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਪੰਖ ਲਗਾ ਕਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ
अपनी ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाते हो और दुनिया को दिखावे का बहुत कुछ करते हो, लेकिन अपने पास वाले साथ वाले को देख के तुमको ज़रा भी नहीं आता तुम दूसरों को भी ऐसे साथ मिला सकते हो। दैट्स वाई वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट विद आवर मनी, दैट्स वाई वी क्रिएट इंडस्ट्री विद आवर इंडस्ट्री। इनू वंड छकना कहते हैं साध संगत जी। जिन्हों लोगों को चौंक ते खड़े होकर किसी भिखारी ते तरस आंदा ना, वो शीशा उतार के उन्होंने 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं। जिन्होंने तरस आंदा ना, वो बाहर भिखारी नूं गुरुद्वारे के मंदिर के बाहर खड़े होकर लाइन लगा के उन्होंने दे देते हैं। पर जिन्होंने सही मैने च तरस आंदा है वो उन्होंने नहीं देते। वो पता है की करते हैं, वो अपने घर के सुखा आरामां तो, अपने परिवार तो, अपने बिजनेस तो, अपने नौकरियां तो, अपने घर वालियां दी सारी सैक्रीफाइस करके उन्हां दा चौक ते खड़ा होना खत्म करांदे ने, ताकि उन्होंने भी घर मिल जाए, ताकि जिहड़े नंगे पैरों खड़े रहंदे ने उन्होंने पैरों ते जुत्तियां पाना मिल जाए, जिहड़ा वो अनपढ़ ने उन्होंने पढ़ाई करनी मिल जाए। ये कदों आंदा है जदों इंसान अंदरों इतना अमीर हो जाता है। इतना अमीर किस गल का अमीर? पैसों का नहीं, संतोख का। जदों संतोख वालों अमीर हो जाता है वो वंड छकना सीखता है। जो संतोख वालों अमीर नहीं होता वो लूण हरामी होता है। साथ संगत मैनू इस श्लोक चो जो गल समझ आई, एक गल होर सांझ करा कि मेरे मदर ICU च ने, कल वो अमेरिका ICU तो बाहर आए, पिछले 21 डेज तो ICU च ने। मैं ICU च बैठे हाँ उन्होंने नाल गल कर रहा श्लोक की, और श्लोक जो मैं उन्होंने सुनाया उन्होंने जबानी याद सी और वो मेरे नाल सांझ कर रहे हैं। साडियां ते मावां बिल्कुल पूर्ण सेहत विच होंदियां, असीं ते बाणी उन्हां डिस्कस करते ही नहीं, असीं उन्हां नाल बहंदे ही नहीं। ये कोई हुण मेरा शो ऑफ है कि मैं बहना? वन ग्रेट एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू शेयर, and thank God she could say hi, but she's tried to share Bani with me in spite of hi. असी जितना समा कढ़िए, and thank God she shared with me a few things. I was surprised. कईयां कोल संतोखी आटा हुंदा है, एक ना आटा अगला। हुण सारा श्लोक मेरे ते टुकेगा। कईयां कोल संतोखी आटा हुंदा है और तृष्णा का जिहड़ा आटा इकट्ठा करते हैं उन्हां कोल संतोखी आटा नहीं होता। जिन्हां ने तृष्णा का आटा इकट्ठा किया है वो संतोखी नहीं होंदे ने, इस करके मन करके सुखी नहीं रहते। मन करके सुखी ना होने का तरीका की है? मैं अपने दुखों से इतना दुखी नहीं हूं जितना दूसरों के सुख देख के मैं दुखी रहता हूं। बस इनू तृष्णा कहते, इनू असंतोखी कहते हैं, इन्हों दूजिया के बूहे ते झांकते रहना कहते हैं। दूजा पॉइंट उन्होंने लिखाया, कईयों को लूण हरामी वाला अकिरत कणता का लूण होता है, और रब का भी धन्यवाद नहीं करते ने। लोगों का किता की करनगे? दात प्यारी विसरिया दातारा वाला जीवन हो जाता है। जो आपने दिया है ये मेरे को अच्छा लगता है, पर बाकी तुम्हारा कोई शुक्र नहीं, निशुक्र हो जाते हैं। जो संतोख का आटा कमाते ने, संतोख का आटा आत्मक तौर पर कमाया जाता है। साथ संगत एक आटा चक्की तो कणक नूं पिसा के घर टीन लिया के रखने वाले आटे की गल नहीं चल रही। जो संतोख का आटा कमाते हैं वो सुखी हो जाते हैं और शुक्र करते हैं। अदरवाइज ना शुक्रे दुखी ते अपसैट रहते हैं। जिहड़ा ना सुखी ते हमेशा अपसैट रहते ना, इन्हों चोटा खाना कहते हैं। अगे गए संजापसन देख, दैट्स हाउ यू आर रिकॉग्नाइज्ड। इस तरह तेरा जीवन हो गया है। चोटा खासी कौन? तू हुण सोच, तू खा रहा है। जिन्हों ने ढेर पैसे कमाए ने वो खा रहे ने या नहीं खा रहे ने, या जेडे गरीब ने वो खा रहे नहीं खा रहे, किसी की गल नहीं चल रही, गल मेरी चल रही है।
मैं तो ठीक हो गया ना, मेरे नाल मिल के दूजे ठीक होंदे या नहीं होंदे, इस तरह मेरे नाल समाज बनता है। मैं समाज का एक रिस्पोंसिबल बंदा हाँ, मैनू अपनी रिस्पोंसिबिलिटी समझाई जा रही है सतगुरु जी के फरीद जी के श्लोक राही। रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी। हुण जे कोई अमीर होवे उन्होंने डॉक्टर ने मना किया है तुसी चोपड़ी ना खाया करो, अमीर तो चोपड़ी खा ही नहीं रहा, ये किवें ओहदी चोपड़ी वेखेगा। सत्संग दी बारली चोपड़ी की गल नहीं चल रही है, दूजे दे सुख देख के जैलसी की गल चल रही है। वेख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी, वेख पराई चोपड़ी नाल असंतोखी आटे कमाण दे नाल सानू चोटा खाण वाला जीवन बन जाता है। इस करके असी सतगुर अगे मंग करते, उस मंग नूं असी एक बारी गाया सी, वीण तुद हो जे मंगना, वीण तुद हो जे मंगना, सिर दुखा के सिर दुखा के दुख जे मंगना, वीण तुद हो जी मंगना, दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया, पुत्र मन की भूख, पुत्र मन की भूख, जे मंगना, वीण तुद हो जे मंगना, वीण तुद हो जे मंगना। साध संगत जे मैं रब कोलों संतोख बदले कुछ होर मंगदा हाँ, मेरिया भुखा नहीं मिटदियां। चोटा खासी कौन, मैं खा रहा, मेरिया भुखा नहीं मिटदियां। जिदी भुखा ना मिटण उहदे कोल दुनियावी पदार्थ होण ते भावें ना होण, उहनूं कहंदे ने भुखिया भुख ना उतरी। इस करके देखना असी अपने विआह शादी ते लखा करोड़ा खर्च दिआंगे, पर आप किसी भैन भरा वास्ते ढेला खर्चण नूं तैयार नहीं होवांगे। मैं अंदरों संतोखी नहीं हाँ। कोई लखा करोड़ा खर्च दे और मेरे ते ना खर्चे तां भी मैं दुखी होवांगा। मैं संतोखी नहीं हाँ, मनु संतोख सिखाओ। सत संतोख होवे अरदास, तां सुन सद बहाले पास। अच्छा दैट्स हाउ वी कम नियर टू द गॉड। अपने नेड़े बुलाते ने तां सुन सद बहाले पास। हुण साध संगत मैं ते नहीं कह सकदा तुहानूं कौन कुछ ठीक सिखांदा है गलत सिखांदा है। केड़ा पाठ पढ़ो तो तुहानूं माया मिलेगी, केड़ा पाठ पढ़ो तो प्रॉपर्टी मिलेगी, केड़ा पाठ करो तो तुहानूं मकान मिल जाएगा, केड़ा पाठ करो तो पुत्र मिल जाएगा। फिर संतोख नहीं सीख सका। बीबियां भी खास तौर पर जी पूछती कोई ऐसा खास शब्द, वो कहने वाले कह जाते ने तिच्चर मूला थुड़िंदो जिच्चर आप कृपाल शब्द अखुट बाबा नानका खाए खरसन माल। वो अखुट बाबा शब्द की गल चल रही है, पर सुनने वाला समझदा है अखुट मतलब तेरे को ढेर पैसे आ जाएंगे। साध संगत असी सतगुर को ना सच मंगन आंदे, संतोख मंगन आंदे। संतोख मंगन दे नाल ना जो मेरी आत्मक अवस्था बनती है उन्होंने कबीर साहब अगे कहते ने, कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लून। हीरा रोटी कारने गला कटावे कौन। मैं एक रोटी खाना हाँ, हीरा रोटी
हेरा रोटी होंदा है शिकारी वाली, हेरा रोटी होंदी है जो दूजे नूं लुटिया है, हेरा रोटी होंदी है जो दूजे नूं मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा कीता है। हुण असी दिन रात एक दूसरे दे नाल जो अपना मूर्ख बना के, जो अपना क्रोध करके, जो अपना लोभ करके ये सारा कुछ करते हैं, साडी डिसहारमनी बनती है। उस वेले मैं लहू पी जाता हाँ, जदों मैं किसी वाल भी क्रोध नाल अखा कढ़दा हाँ, मैं उस वेले उसका खून चूस जाता हाँ। ये बचपन ही सेंटेंस सुनिया सी, मास्टर ने इतने गुस्से से मेरी तरफ देखा, मेरा खून सूख गया। मास्टर ते दूर खड़ा सी, खून कहां से सूख गया? सेंटेंस है, एक फ्रेज है, एक स्लैंग है, एक आयरनी दा मैसेज है। जदों असी किसी वाल घूर के गुस्से दे नाल देखते हैं, उहदा खून चूस जाता है, एज इफ मैं पी गया। हुण सारा टॉपिक साडा सामने खुल के आया। इक ना आटा अगला, इक ना मीनस प्लूरल विच कई इक ऐसे हन जिन्हां कोल संतोख दा आटा ढेर सारा है, ये पॉजिटिव शब्द है। पर इक ना नहीं लोण, इक ना नहीं लोण दा मतलब है जदों मैं लूण हरामी हो जाता हाँ, मैं लूण जितनी भी कदर नहीं करता, जदों मैं किसी दा लूण खा के मुनकर हो जाता हाँ, मैं उदा धन्नवाद नहीं करता, एज इफ मेरे कोल ओ लूण नहीं है। लूण साहिब दा खाए के मैनू समझ ही नहीं आया। साथ संगत, जो इंसान बहुत गरीब होए ना, मैं फरीद जी बारे सुन रहा सी भी फरीद जी बहुत भैन भरा सन, खौरे 10-12 दसते ने, और बहुत गरीब सन। वो बहुत अत दर्जे की गरीबी सुना के नाल ये गल सुनाई जा रही है, जो मैं पता लगी। मैं फरीद जी की सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पर जितनी सुनी उहदे विचों कहंदे ने इतनी अत दर्जे की गरीबी सी कि पानी विच लूण मिक्स करके सारे खा लेंदे सन, उहदे नाल रोटी या जो कुछ भी मिलता सी। इहदा मतलब गरीब तो गरीब लूण ते अफोर्ड कर ही सकता है, लेकिन एक ना ही लूण दा मायना जदों मैं समझा कि मेरे अंदर लूण हरामी होने के बदले वफादारी दा लूण नहीं अवेलेबल, तो मैं थैंकलैस हो जाऊंगा। मेरा किसी ने भी निक्का कम एक दिन किया, 2 दिन किया, 99 दिन किया, 100वें दिन जे नहीं किया, मैं 99 नूं काटा मार देंगा, और 100वें दिन जेड़ा अज मेरा नहीं किया ਉਹਦੇ ਤੇ मैं पूरी पत ला देंगा, थैंकलैस हो जाऊंगा, अकिरतकान हो जाऊंगा। जे मैं आस पास के मनुखों के नाल अकिरतकान हो सकता हाँ, तो मैं रब जी का शुकराना कित्थे करन जोगा हाँ, जेड़े जे प्रसाद 36 अमृत खाए थे, इस ठाकुर को रख मन माए वाली अवस्था तो मैनू समझ आएगी नहीं। इस करके मैं की करांगा, जेकर मेरी नौकरानी मेरे वास्ते रोटी बनाती है तो मैं उसका शुक्रिया करा, जेकर मेरी मां मेरे वास्ते बनाती है मैं उसका शुक्रिया करा, शुक्र है बना के ले आए हो। निक्की निक्की गल ते आस पास एप्रीशिएट करते हैं ना, मैनू सतगुर की जाच आ जाती है बाणी राई कि मैनू रब जी का भी शुक्र किस तरह करना है। असी नशुक्रे ही आना जदों असी अपने चारों पासे ना शुक्रिया वाला एक डीड्स करते हैं, सेंटेंसिस बोलते हैं। हुण एक ना ही लोड़ अगे गए सिंजापसन चोटा खासी कौन अगे का मतलब हुण तू अपने बारे सोच लै कि इस तरीके ना चोटा पैंदियां, तो जे तेरे को आटा अगला है संतोख का तो तू चोटा नहीं खांदा, जे तेरे को लूण हरामी वाली अकिरत करता है तो तू चोटा खांदा है पल पल अपने जीवन में। नेक्स्ट, कबीर खूब खाना खींचरी जा मैं अमृत लोन, अमृत लोन ही यही लोन है जो मैनू वफादारी सिखांदा है। फिर मेरा जीवन की बन जाता, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, केड़ी भुख? मेरी असंतोख दी, मेरी डिसकंटेंटमेंट दी भुख लथ जाती है। फिर जे सुख दे ता तुझे राधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इति राजा, दुख भी सुख मनाई। फिर मेरे को कुछ है या नहीं है, मेरा मन सुखी है, लोकां कोल है या नहीं है, मैं उन्होंने देख के अपसेट ना होवा।
ਇਹ ਜਾਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਟਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ कह रहे जे रत लगे कपड़े जामा हुए पलीत, जो रत पीवे मानसा, जो लोगों का खून चूसते हैं। मापियो बच्चियां नूं क्रोध करके खून चूस जाते हैं, कई बच्चे मापियो ते क्रोध करके खून चूस जाते हैं। कई जगह ससा सौरे, इस जगह कोई, इस जगह कोई। एक बच्चा कहता है मम्मी कल मैंने स्कूल नहीं जाना, टीचर बहुत गुस्सा करती है। टीचर खून चूस गई। असी लोकां तो हेरा फेरी करके बड़ी लंबी चौड़ी ठगी करके अपना सब कुछ हथियार लेंदे हां। खून चूस लिया, क्रोध किया खून चूस लिया, लोभ किया खून चूस लिया। लभ लोभ असी विचार रहे सी, लभ लोभ की होता है? लोभ तो होता है लालच, ग्रीड। पर लभ की होया? मोस्टली गुरबाणी च लभ ते लोभ जदों इकट्ठा आएगा तो पता लगता है लोभ का मतलब तो मैं लालची हाँ, असंतोखी हाँ, पर लभ का मतलब होता जो तुहाडे कोल है वो भी मैनू दिओ। दैट इज लभ अते लभ अते लोभ। हुण गुरु साहब कहते ने पता है की बन गया है? लभ कुत्ता, कूड़ चूड़ा, ठग खादा मुर्दार। मैं ये ठगी का मुर्दार खांदा, ये ठगी का मुर्दार वाली रोटी। जो रत पीवे मानसा, लोकां दा खून किवें असीं चूसदे हां। तिन क्यों निर्मल चीत, उन्हां दा चित निर्मल नहीं हो सकता। जिहदा चित निर्मल नहीं है उन्होंने कह रहे ने नानक नाउ खुदाए का दिल हच्छै मुख ले। दिल रूपी मन रूपी मुख दे नाल अपना सफाई कर ते ओदे नाल ना लिया कर। इथों जबान तो मुखों हर हर सब को करें, राम राम सब को कह आराम ना होए। इथों जबान तो तू जिहड़ा कह लैंदा रब दा नाम, कहना माड़ी गल नहीं, पर कह के इथों तेरी कैंची चलती रहती है। कह के इथों तेरा लोभ ते संतोख दा फर्क तैनूं समझ ही नहीं आंदा। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ है अपने खुदा का नाम लै, राम का नाम लै, वाहिगुरू का लै, रब का लै, जिदा मर्जी लै, पर तेनों अपना मन का जिहड़ा तेरा चित्त निर्मल नहीं है, तू लोकां दा खून चूस जाता है। दिल हच्छा मुख ले, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे। यह झूठा अमल है, यह दुनिया नूं दिखाण दा अमल है। दुनी दे भी अर्थ असीं अपने शरीर ते भी टुकांदे हैं और लोकां ते भी टुकांदे हैं। हुण समझ आ रही है कि मैं ते लोकां दा खून चूसदा। हुण साडी लड़ीवार जिहड़ा तुहाडे कोल प्रिंट है उहदे विच असीं अगला श्लोक लिखिया, फरीदा रत्ती रत ना निकले जे तन चीरै कोई। फरीजी एक होर थॉट दे रहे ने, जदों तन नूं चीरो उहदे चों रत खून नहीं निकलदा। फरीजी कह रहे, फरीजी ने कुछ गलत कह नहीं दिता। मैडिकल टर्म्स के अंदर ये लगता है कि गलत कह रहे हैं, लेकिन फरीजी जो कह रहे हैं उसनूं गुरु साहब होर खोल देने। फरीजी दी रमज है, गुरु साहब उन्होंने खोल देने। हुण फरीजी कहते हैं फरीदा रत्ती रत ना निकले जे तन चीरै कोई, जो तन रत्ते रब स्यों तिन तन रत ना होए। जो रब दे नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे तन अंदर रत नहीं होंदी। साध संगत कोई मनुख जींदा ही नहीं रह सकता जिन्ना अंदर ब्लड ना हो। ब्लड ही सानू जींदा रखता है। जिथे साडा ब्लड घटदा जाए, जिथे हड्डियां रोम रोम तक साडा ब्लड घटदा जाए, उत्थे तक ब्लड पहुँचाया जाता है, साडा नापिया जाता है ब्लड। साडा ब्लड खराब होवे तो साडा ब्लड साफ किया जाता है, साडा ब्लड साफ करके डायलिसिस किया जाता है, नवा ब्लड दिया जाता है। ब्लड बिना मनुख जी नहीं सकता।
फरीद जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी दर्ज है, फरीद जी गलत कह नहीं सकते। हुण फरीद जी किस ब्लड की गल कर रहे हैं, वो ब्लड मैनू अज के टॉपिक ही समझना पेगा। एक ना आटा अगला वाला वर्सिस एक ना ही लोन वाला वर्सिस खूब खाना खिचड़ी वाला। साध संगत ये शब्द ये श्लोक फरीद जी कबीर जी सिर्फ सिखा वास्ते नहीं कह रहे। सिख तो वडभागी हैं कि गुरु साहब ने उन्होंने बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज किया है। इंसानियत के सब के यूनिवर्सल ट्रुथ के और होल ह्यूमैनिटी वास्ते एक धर्म सिखाया जा रहा है। एक धर्म दृढ़ है सच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का धर्म सिखाया जा रहा है। इंसानियत की गल की जा रही है। कैसे हमारा समाज खराब हो गया है। अगर मैंने संतोष का आटा नहीं खाया तो मैं ज्यादा कमाई जाऊंगा और अपने समाज का ध्यान नहीं रखूंगा, और मैंने संतोष का आटा खा लिया तो मैं अपना भी ध्यान रखांगा और दूसरे का भी ध्यान रखांगा। सैस कटेला कोटता हुए तक कह भी नहीं खावांगा। रत्ती रत ना निकले। फरीद जी किस रत की गल करते हैं, किस ब्लड की गल करते हैं, वो सानू गुरु साहब महला तीजा का उत्थे श्लोक नाल लगाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच फरीद जी के जिथे श्लोक ने और कबीर जी के जिथे श्लोक ने उत्थे गुरु साहब ने नाल अपने कुछ श्लोक लगाए हैं, जिन्हां दा सिरलेख श्लोक फरीद जी का ही रहेगा या सिरलेख श्लोक कबीर जी का ही रहेगा, पर विच गुरु साहब ने अपने श्लोक लगाए ने। फरीद जी के करीबन 130 श्लोक जिन्हां विच गुरु साहब के भी श्लोक हैं, कबीर जी के करीबन 242-43 श्लोक जिहदे विच गुरु साहब के श्लोक हैं। सिरलेख श्लोक कबीर जी के, सिरलेख श्लोक फरीद जी के, और विच गुरु साहब उस रमज नूं खोलते हैं जिथे लोड़ पैंदी है। हुण इत्थे कहंदे ने एक गल ते समझ आ जानी चाहिए है कि रीयल जिहड़ा ब्लड साडे अंदरों लाल रंग का निकलदा है उहदे बिना ते मनुख जी सकता ही नहीं है। फिर किस रमज की फरीद जी ने गल की, उन्होंने गुरु साहब खोलते हैं महला तीजा। गुरु अमरदास जी का शब्द गुरु अर्जन पातशाह ने इस प्रकरण में जोड़िया। साध संगत मैनू ये टॉपिक अचानक डे बिफोर यस्टरडे क्यों मेरे दिमाग च आया, क्योंकि इसी बड़ी देर तो गल्लां कर रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है, दुनिया में बेईमानी बड़ी है, दुनिया में लोग एक दूसरे से तिंगोजोरी खींचातानी कर रहे हैं, एक दूसरे से लूट मार कर रहे हैं। हुण ना असीं सारिਆਂ तो अख ना अपने वाल ले आवांगे और मैं अपने बारे समझांगा। उन्होंने करने महला तीजा। ये तन सबो रत है, दिस बॉडी हैज रियल ब्लड। रत बिन तन ना होए, मैडिकल टर्म्स इच प्योर खरा सच दसिया। गुरबाणी का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो लॉजिकल ना हो। इलॉजिकल एक भी शब्द नहीं है। साइंस भी इस गल नूं मनदी है। गुरबाणी कोई भी अफलातून वाली ऐसा गैबी गल्लां नहीं करती। गुरबाणी इंसान नूं हकीकत सिखा के इंसान दे अवगुण दूर करती है, इंसान नूं शैतानियत तो चुक के इंसानी तल ते लैके आ पूरन मनुख बनाती है। उसनूं कहंदे ने जिन मानस ते देवते किए, जो उन्होंने कहंदे ने पशु प्रेतो देव करे। उन्होंने आइडियल जीवन का स्पिरिचुअलिटी सिखाती है गुरबाणी। हुण कहंदे ने ये तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो शह रते अपने तित तन लोभ रत ना होए। अच्छा, ग्रीडी ब्लड की गल चल रही है। जदों मैं लोगों का खून चूस जाता हाँ, जदों मैं किसी ते क्रोध करके उसका खून चूस जाता हाँ, भावें वो मनुख मेरे तो लखा मील दूर होवे, मैं फोन ते क्रोध करा उसका साह सुक जाए, उत्ते मेरे नेड़े तेड़े रहते हैं उन्होंने साह सुक जाए, वो दब्बे कुट्टे सहमे रहन। एक सज्जन ने मैनू कहा सी ना, असी पूरा घर रोब रखते हैं, जो ही मैं घर जाता सारे थर थर कंबते हैं। तो एक बीबी जी ने भी डिस्कस किया किसी वेले, मैं ते मेरी सस ते साडे सारे घर वाले सब आपो अपना काम लग जाते हैं, जो ही साडे घर दे मालक घर वड़ते हैं सारे डर जाते हैं। की है दूजे दी रत पी जाना, जो रत पीवे मानसा। हुण ये रत समझा रहे ने, जो शह रत्ते अपने तित तन लोभ रत न होए। यह निशानी हो गई, जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना वो लोभी रत नहीं पीता है।
वो लोभी ग्रीडी नहीं होता। ਢਹਿ ਪਏ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਪਿਆਰ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਢਹਿ ਪਏ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਲੋਭ ਰਤ ਵਾਲਾ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਭ ਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਾਉ दुर्मत मैल गवाए। इस शब्द की दुर्मत है मेरी लोभ रत। नानक ते जन सोने जे रत्ते हर रंग लाए। मेरी लोभ रत चली जाए, मैनू संतोख दा आटा कमाना आ जाए। साध संगत जदों असीं संतोख दा आटा कमाण लगदे आ ना, फिर मेरा किसी का भी खून चूसन का दिल नहीं करता। फिर मैं चारों पासे अपनी अखां नाल हमदर्दी वालियां चारों पासे अखां पिछा सकां, मिठास वाले लफज बोल सकां। मेरी बॉडी लैंग्वेज तो लैके मेरे हाव भाव नज़र आन, मैं तुहानू डरा नहीं दिया। वो इंसान बहुत अपसैट हो जाता है जिहड़ा पहला अपने आप तो डरदा है फिर दूजिਆਂ ਨੂੰ डरांदा है। ਇਹਦਾ मतलब दूजिਆਂ ਨੂੰ डराउण ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ। अपना खून मैं चूस लिया, अपना मैं हार्ट बीट खराब कर लई। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਟਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਕੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਿਹਾਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारू। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 36 ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਲਟ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾ, ਫਿੱਕੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣ ਪਾਇਆ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਆਖਾਂ, ਕਿ ਨਾਹੀ ਕੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕਥਨਾ, ਭਰਿਆ ਭਰ ਭਰ ਧੋਵਾਂ। ਆਪ ਨਾ ਬੁੱਝਾਂ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ, ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਹੈ, सबस मुआए साथ है, अगे गया मुँहे मुँह पाए। सो ऐसा आगू जापै। मेरा मन आगू है, मेरे सारी बॉडी नू मैनूवर करता है। मैं किसी नू नहीं समझाना, अपने मन नू समझाना है। और जे मेरे मन की लोभ रत चली जाए, मेरा मन जे संतोख का आटा खाना सीख लवे, तो साडे घरां दे जीवन सुखी हो जाए।